So welcome back. Today let's start with one more chapter of SS and that's lesson 8 and it's related to your uh, problems of India and its solution. Now what would you term as problems? I would say they would not be called as, we should not call it as problems, but we can call it as challenges. ऐसे challenges जिसको हमें face करना है, जिसको overcome करना है, उसके लिए solutions find out करने हैं. So let's start. Before starting, uh, let me tell you a few of the challenges that India has been facing after independence. And yes, we have not 100% overcome it. We have not solved all these problems 100%, but lots of development we have seen in our country after independence. And in these last 10, 15 years, we have seen more and more of development and poverty reduction, unemployment reducing day after day, and Make in India, and lot many other such schemes were brought by PM Shri Narendra Modi ji, which has brought about happiness in the life of so many people in our country. And of course, the other part we'll see over here. What is it? So let's start. Problems of India and its solution. The materialistic resources, matlab ki a luxuries, or it could be a comfort like your chair and table and bed and your food. And apart from food, we can take many other things like your dress and your car and cycle and two-wheelers. And तो ये सारे materialistic resources have been changed. But certain internal matters of common people does not show any expected changes. तो पहले के मटेरियलिस्टिक रिसोर्स अलग थे. चलो भाई, तब डबल बेड नहीं थे, लोग नीचे सो जाते थे, डाइनिंग टेबल था नहीं, बहुत 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 साल पहले. अब मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज चेंज होते रहते हैं. Next year you will see something new. After 5 years you will see something still better in your life. But जो internal matters हैं common लोगों में, that has not shown enough change. Like हमारी सोच, हमारा behavior towards a particular subject means matter, वो हमारी जो सोच है वो नहीं बदली, बहुत स्लोली बदल रही है. किसी का देखा तो ड्रेस लेके आए, किसी के यहाँ कुछ नया कुछ टेक्नोलॉजी देखी तो हम उठा के ले आए. तो ये सारा चेंज होता रहता है, लेकिन किसी की अच्छी सोच हम जल्दी से पिकअप नहीं करते. गॉट इट? A lower attitude, matlab behavior and commitment, lower commitment is seen in terms of moral values, loyalty, duties of a citizen. 100% we are not loyal. We are not performing all the duties as a good citizen of a country. हमारी अवेयरनेस टूवर्ड्स ट्रांसपोर्टेशन रूल्स एंड रेगुलेशन, अरे ठीक है, रेड लाइट ही है ना, एकदम अभी अभी तो रेड लाइट हुए, एकदम स्पीड में निकल जाओ वहां से रूल ब्रेक करते हुए, सिग्नल्स एंड ऑल. एनवायरमेंट अवेयरनेस, कचरा डालो बाहर, कल्टीवेशन ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड. अब साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंस की तरफ का जो हमारा एटीट्यूड है, या जो ऑनेस्टी हमारी लाइफ की तरफ है, या जो ड्यूटीज है एज अ गुड सिटीजन, अवेयरनेस ऑफ द ट्रैफिक रूल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन रूल्स, ये सारे चीज़ों की तरफ हमारी सोच अभी अच्छी रही, मतलब अच्छी हो ही नहीं रही. जो स्पीड से हम किसी की मटीरियलिस्टिक चीज देख के घर में उठा के लाते हैं, वैसे किसी का अच्छा बिहेवियर देख के हम फॉलो नहीं करते इतनी स्पीडली. स्टिल द सोसाइटी हैज नॉट कम आउट ऑफ सुपरस्टिशन, डाउट, इलिटरेसी, इग्नोरेंस, इविल बिलीफ. ये सारी जो मान्यता है पुरानी, सोच विचार हमारे पुराने, हमारे इग्नोरेंस, डाउट्स, इलिटरेसी, इसके बाहर आने में काफ़ी टाइम लगता है लोगों को. वो जल्दी से ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करते, नई चीज़ें लाइक ब्रॉड माइंडेडनेस, हाई लिटरेसी, अवेयरनेस, पुरानी मान्यता को छोड़ दो, डाउटफुल नेचर, इविल बिलीव्स एंड ऑल, इन सबको छोड़ना होगा हमें. द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, NGOs, मतलब नॉन गवर्नमेंटल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन प्लेज अ ग्रेट रोल as their valuable contribution for maintaining sociability and professional progress is seen in society. तो बहुत सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक वॉलंटरी इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ये सारे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं हमारी सोसाइटी को इम्प्रूव करने में, आगे बढ़ाने में, प्रोग्रेस. The society shows many positive changes.
Still, there are many problems that we are facing, and they are to be faced as challenges, as I told you: pollution, unemployment, poverty, illiteracy, terrorism, etc. तो ये जो सोच जो है वो तो एक बड़ी प्रॉब्लम है. उसी की वजह से हमारी प्रोग्रेस रुक जाती है, जैसी हमारी सोच, राइट? पॉजिटिव, नेगेटिव, हैप्पी, सैड, गुड, बैड, हाई, लो, अलग अलग टाइप के हमारे थॉट्स होते हैं. उस हिसाब से हम या तो सोसाइटी को आगे बढ़ाते हैं या सोसाइटी को पीछे की और ले जाते हैं. तो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम. तो कंट्री की प्रोग्रेस एक तो हमारी सोच पे भी रहती है डिपेंडेंट. नेक्स्ट इज बहुत सारे अलग प्रॉब्लम्स है, लाइक पोल्यूशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, लिटरेसी, टेररिज्म एटसेट्रा, जिसके ऊपर हमें बहुत डीप सोचना होगा. सो दीज आर सीरियस प्रॉब्लम्स टू थिंक ओवर, टू पॉन्डर. दे हैव टू बी थॉट ऑफ. इसके ऊपर सोचना ही होगा सबको. एंड इट इज नेसेसरी टू मेक कलेक्टिव एफर्ट टू फाइंड देयर सोल्यूशन. तो हमें साथ मिलकर इसके सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं. द कंसेप्ट ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, दैट इज द होल अर्थ इज अ फैमिली, हैज टू बी इनकलकेटेड. मतलब हर एक बच्चे में सोच डालनी होगी, हर एक बड़ों में भी सोच डालनी होगी that the whole earth is a family. So respect it, preserve it, take care of it, and love it. So let's see about the qualification of the problems in India. So let's see about the classification of problems in India. There are internal problems and regional problems, boundary problems, natural problems. Let's see now. The internal problems, that is within a country, which are the problems: overpopulation, illiteracy, inflation is price rise, and poverty, unemployment, urbanization, communalism. कम्युनलिज्म मतलब दो कम्युनिटी के बीच में जो टकराव होते रहते हैं, लाइक वी से हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम क्रिश्चियन, उसको अलग अलग हम कम्युनिटीज कहते हैं. तो कई बार कम्युनिटीज के बीच में जो रायट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, दैट इज कॉल्ड कम्युनलिज्म, करप्शन, टेररिज्म. रीजनल, ओके, टेररिज्म वी कैन ऑल्सो कंसिडर एज दिस यूनिवर्सल प्रॉब्लम, वर्ल्ड प्रॉब्लम, लेकिन हमारे कंट्री का भी तो वो एक है चैलेंज विच विल हैव टू ओवरकम. रीजनल प्रॉब्लम, लैंग्वेज डिसिमिलैरिटी एंड रीजनलिज्म. अब रीजनलिज्म मीन्स कि एक पर्टिकुलर एरिया को ऐसे लग रहा है दैट वी आर नॉट टेकन केयर ऑफ बाय अ स्टेट गवर्नमेंट और बाय area leaders, and we are not supported in development and all. तो कई बार एक पर्टिकुलर रीजन वालों को ये जब फीलिंग आने लगती है तो दे रिवोल्ट अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट और कंट्री गवर्नमेंट एंड आस्क फॉर अ सेपरेट स्टेट और मोर डिमांड्स, राइट? तो उसको हम कहेंगे रीजनलिज्म. तो रीजनल प्रॉब्लम्स क्या है? लैंग्वेज डिसिमिलैरिटी एंड रीजनलिज्म. बाउंड्री रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी काफी हैं. और नेचुरल प्रॉब्लम्स तो है ही, जैसे फ्लड, फेमाइन, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक इरप्शन एंड साइक्लोन. सो लेट्स सी. All these problems exist, and few among them will be discussed and information will be obtained about the solution. So overpopulation, let's see. एक incident, just take like an example. Malo had to attend his maternal uncles. देखो, पैटर्नल अंकल मतलब चाचा, मैटरनल अंकल मतलब मामा, राइट? तो sorry. Malo had to attend his maternal uncle's marriage. He came to the bus stand with his mother. There was a big crowd over there. ए धक्का मुक्की, लंबी सी लाइन. लाइन तो ठीक, मतलब कि लोग एक बस के अंदर जाने के लिए ना दमा चकड़ी मची हुई थी, chaos. Big crowd over there at the bus stop. The bus arrived, but there was no place to sit. Many people were pushing each other. Malo could not get in the bus. He could not board the bus. Thus, he could not reach his uncle's place in time. Why? Right? Overpopulation. अगर कोई और कंट्री में हम जाते हैं तो देखते हैं, इफ यू मस्ट हैव बीन टू सिंगापुर एंड मेनी अदर सच कंट्रीज, तो वहां पे हम देखते हैं कि पॉपुलेशन इतनी नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन शायद पॉपुलेशन को चाहिए उससे ज्यादा है, राइट? एंड many terms and condition, rules, regulations are followed so very nicely. Make a list of certain crowded places in Vayu. I would say Mumbai local train and Calcutta, yes, where I've seen crowded places.
और बहुत सारे ऐसे सिटीज हैं, रीजन्स हैं where you see overcrowded place. In the previous chapter, we had already studied about population increase and its impact. कि पॉपुलेशन इंक्रीज होने पे उसकी इफेक्ट कहाँ कहाँ पे होती है, राइट? लोगों को घर ठीक से नहीं मिलता, स्लम एरिया ज़्यादा होते हैं, नौकरियां नहीं मिलती, पॉवर्टी बढ़ती रहती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सब सिटीजन्स को नहीं दे पाते, और वाटर प्रॉब्लम, क्लेanलीनेस प्रॉब्लम, हाइजीनिक दैट इज प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज, तो बहुत सारे उसके इफेक्ट्स हैं ओवर पॉपुलेशन के. द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम इज ओवर पॉपुलेशन. सबसे बड़ा रीजन किसी भी प्रॉब्लम का अगर हम हमारी कंट्री में देखें तो वो है पॉपुलेशन की वजह से. लेट्स थिंक अबाउट द मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन. द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑल्सो डिमांड्स इंक्रीज अदर फैसिलिटीज फॉर लाइफ. अब देखो, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फैसिलिटीज की डिमांड तो करेंगे ही वो, तो उनके लिए और चाहिए कि वो चीज़ हम बनाएं, लेकिन उतनी स्पीड में बनता नहीं जितनी स्पीड में पॉपुलेशन बढ़ रही है. मतलब कि जॉब उतनी स्पीड में नहीं इंक्रीज होंगे जितनी स्पीड में पॉपुलेशन आगे बढ़ रही है. इसका मतलब है कि कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, राइट? वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, जितनी स्पीड में पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है उतनी स्पीड में उतने सालों में कोई एक पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन का प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट नहीं होता. उतनी स्पीड में बसेस रेडी नहीं होती पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वाली, तो कई लोगों को फिर खड़े खड़े जाना होगा, या लेट पहुंचते हैं, या लॉट मेनी अदर प्रॉब्लम्स अराइजेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पॉपुलेशन हम स्टॉप तो हो ही नहीं सकता, लेकिन पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय ब्रिंगिंग डाउन द बर्थ रेट, बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल की, जैसे कि हम दो हमारा एक, हम दो हमारे दो, बट हम दो हमारे 3 4 5 10, दैट शुड नॉट बी देयर. क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग मेंटेलिटी. पैसे वालों को अगर उनके यहाँ 2 3 लड़कियां हो गई तो लगता है नहीं, लड़का तो चाहिए, हमारे इतने पैसे कौन संभालेगा, हमारा नाम आगे कौन बढ़ाएगा. गरीबों में इसलिए ज्यादा बच्चे वो करते हैं बिकॉज फॉर देम मोर हैंड्स मोर मनी. मतलब जितने ज्यादा बच्चे उतनी ज्यादा कमाई, आज नहीं तो कल जब बड़े होंगे तो कमाना शुरू कर देंगे, तो फैमिली में कमाने वाले ज्यादा हो जाएंगे. ये उनकी सोच है. पढ़ाई, 1 या 2 बच्चे बहुत हो गए घर में, फिर उनको अच्छे से पढ़ाई करवाओ, उनको आगे बढ़ाओ लाइफ में, खुद डेवलप हो, फैमिली को डेवलप करो, बच्चों को डेवलप करो, ये सोच नहीं है उनकी. लिटरेसी हाई वाली सोच नहीं है, राइट? एंड द डेवलपमेंट इन द कंट्री ऑलवेज सीम्स टू बी लेस ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन. तो उस कंट्री की, जैसे हमारी कंट्री की डेवलपमेंट हो सकती है अगर स्पीडीली, हो ही रही है बहुत अच्छी, बट और तेजी से हो जाती बहुत साल पहले अगर पॉपुलेशन कंट्रोल में ले आते. दैट्स नॉट देयर. वो सोच ही नहीं है लोगों में. 2 3 लड़कियों के बाद भी लड़का तो होना ही चाहिए घर में. दैट्स अ वेरी wrong thought, I would say, that has already been deep rooted in our country. According to population census, census मतलब हर 10 साल में जो काउंटिंग होती है पॉपुलेशन की, और लास्ट में नंबर होगा 1, जैसे 1951 में हुआ, फिर 61, 71, 81, 91, 2001, 2011, अब 2021 में काउंटिंग होगी फिर से. तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सेंसस 2001, the total population in India was 102 crores. But today in 2011 has gone up to 121 crores. Just see, nearly 19 crores increased, right? And in this way, there has been an increase of 18.14 crores, nearly 19 crores. 2001 से 2011 तक 10 सालों में 19 करोड़ या 18.14 टू बी वेरी मच परफेक्ट प्रिसाइज, इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई 10 सालों में. मेनी मैन मेड प्रॉब्लम्स. मैन, देखो मैन मेड हम साथ में लिखेंगे, अलग अलग बोलोगे तो उसका मतलब भी बदल जाएगा. सो मेनी मैन मेड, मैन हाइफन मेड, या साथ में लिख लो मैन मेड, जॉइंट. सो मेनी मैन मेड प्रॉब्लम्स हैव बीन क्रिएटेड ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, डेंसिटी, water, food, medical services, educational unemployment, corruption, etc. बच्चे पढ़ लिख तो जाते हैं लेकिन काम नहीं है, right? Etc. So many problems have increased in our country due to overpopulation. So government has to take up certain steps to control them. तो पहले तो illiteracy कम करनी है, literacy बढ़ानी है. Illiteracy is the biggest factor that is hindering मतलब that stops
or I would say not stops, but creates problem in the progress of the country. It slows down the progress of the country. तो लिटरेसी सबसे बड़ा रीजन है, फैक्टर मतलब रीजन, बिगेस्ट फैक्टर. लिटरेसी इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड न्यू आइडियाज, नई आइडियाज को, नई सोच, नई डिस्कवरीज, नया नॉलेज, इन सबको जानने के लिए, समझने के लिए लिटरेसी बहुत जरूरी है. अ लिटरेट पर्सन कैन इफेक्टिवली प्रेजेंट दिस आइडियाज. मैं ये नहीं कहती कि जो इलिटरेट है उनके पास अच्छे आइडियाज नहीं है, शायद बेस्ट आइडिया वो ही लेके आए, लेकिन उनके पास उस आइडिया को समझाने के तरीके नहीं है. दे कांट इफेक्टिवली प्रेजेंट देयर आइडियाज, ओपिनियन, व्यूज, बिलीव्स टू एनी अदर पर्सन and make the other person understand or make that him understand. When we attained independence, literacy rate was about 18.33, 18.33. मतलब हर एक 100 के आदमियों के ग्रुप में 18 लोग ही पढ़े लिखे थे, 18 या 19. आज उसमें काफी प्रोग्रेस हो चुका है. वी आर नॉट सेइंग नो. Nearly more than 70-75% are literate today. Good progress. But compared to developed countries, जहाँ पे I would say 99-100% literacy है, उसके सामने हमारा आज भी बहुत slow है. But the government's awareness towards education has increased the literacy rate in the country. In the 19th century, in order to increase the literacy rate in his state, Maharaj Sayaji Rao Gaikwad initiated that he started free and compulsory primary education. So now let's move ahead to the next part, and that's measures. मतलब ऐसा क्या करना होगा हमें ताकि लिटरेसी बढ़े, या हम कह सकते हैं ऐसा क्या करें कि लिटरेसी कम हो जाए, right? Today many incidents are heard where people take undue, un और due साथ में लिखना है, undue advantage of people's illiteracy. मतलब ऐसे कई हमने केस सुने हैं कि लोग दूसरों की इलिटरेसी का फायदा उठाते हैं. कई जगह पे, जैसे कई लोगों को पढ़ना नहीं आता तो उनके पास एक गलत जगह पे अंगूठा लगवा लेते हैं, क्योंकि उनको साइन करनी भी नहीं आती तो अंगूठा लगवा लेते हैं. कुछ कहते हैं कुछ और है, करवा लेते हैं कुछ और. द इलिटरेसी इज अ ब्लैक स्पॉट, बहुत बुरी चीज है. ऑल्दो मेनी मेजर्स हैव बीन अंडरटेकन टू इरेडिकेट, यहाँ पे लिखो टू इरेडिकेट इट, मतलब कि इलिटरेसी को निकालने के लिए काफी हमने मेहनत की है, बहुत सारे स्टेप्स भी लिए हैं, बट स्टिल आज भी कहीं ना कहीं इलिटरेसी तो हम देखते ही हैं. लाइक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्राइमरी लेवल इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years, जैसे कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं. फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 years, free compulsory it is. Then universalization of primary education, scholarship, midday meal, pre-primary education, girls education related policies, Vidyadip bond या Vidyadip policy in ashram schools, Vidya Lakshmi bond, ideal residential school, continuous education, and since 2009, right to education also we are introduced. This intro, TRO, introduced, and IMPLE, PLE. सो इंट्रोड्यूस भी किया, इम्प्लीमेंट भी किया, उस पर काम करना भी शुरू कर दिया है बहुत सालों से, 2009 से, राइट टू एजुकेशन. अब इन्फ्लेशन मतलब प्राइस राइज. जैसे कि कोई भी 1 किलो चीज ले रहा है, 1 लीटर ले रहा है, जैसे मिल्क है तो 1 लीटर, यू कैन से 1 kg प्योर घी, 1 kg शुगर, जैगरी, फिर पेट्रोल लीटर एंड ऑल दिस थिंग्स. 5 साल पहले शायद, जस्ट इमेजिन, 2 रुपए था, 5 साल में आज 4 हो गया, डबल द प्राइस. So percentage increase in price, I would say, is always more and more and more. तो ये तो जस्ट एक जस्ट दिया है, where you can just find it out and note it down. Now the increase in price, अभी प्राइस भी इंक्रीज होती रहती है of essential commodities, basic required commodities, other necessities. अब इसमें जब प्राइस बढ़ती रहती है तो इसको हम क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन. Adverse effect of this price rise in commodities used daily is seen on human life. अब जब प्राइस राइज होती ही रहेगी, मतलब प्राइस बढ़ती ही रहेगी चीजों पे, इंपॉर्टेंट चीज, नेसेसिटीज पे, बेसिक कमोडिटीज पे, बेसिक प्रोडक्ट्स पे, जो एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए, उस पे जब प्राइस बढ़ती रहेगी, हर 2 महीने में देखते हैं, हर 4 महीनों में प्राइस बढ़ती ही रहेगी उस प्रोडक्ट पे, लाइक घी, शक्कर, तेल, गैस, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, टोमेटो, ऑनियन, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, दिस आर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. तो होगा क्या? इसकी नेगेटिव इफेक्ट दिखाई देगी हमारे लाइफ पे. एंड प्राइस राइज इज अ हेवी बर्डन ऑन कॉमन मैन, इट इज नॉट मेन, इट इज मैन. आई निकाल दो तो कॉमन लोगों पे तो ये बहुत बड़ा बर्डन है, राइट? प्राइस राइज
इट बिकम्स टफ फॉर द मिडिल क्लास पीपल टू अर्न देयर लिविंग, और लाइफ को आगे बढ़ाने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इन मिडिल क्लास लोगों को। लाइफ उनके लिए टफ बनती जा रही है। द कॉमन पीपल हैव टू बेयर प्राइस राइज। अब कॉमन लोगों को प्राइस राइज तो बेयर करनी होगी। देखो, नेसेसिटी तो लाना ही पड़ेगा घर में। इनकम हमारी इतनी तेजी से बढ़ती नहीं जितनी तेजी से बाहर प्राइस बढ़ रहे हैं नेसेसिटीज के। तो लाइफ बिकम्स टफ फॉर द मिडिल क्लास पीपल टू अर्न देयर लिविंग, टू लिव देयर लाइफ। लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल गोज डाउन। लाइफस्टाइल बेहतर की जगह पे खराब होती जा रही है। इट हैज बिकम डिफिकल्ट टू फाइट दिस प्राइस राइज, दैट इज इन्फ्लेशन, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ नेसेसरी कमोडिटीज। समटाइम्स कॉमन मैन हैज टू गो विदाउट इट ऑल्सो। कई बार कॉमन लोगों को इंपॉर्टेंट कमोडिटीज के बिना जिंदा रहना पड़ रहा है। दे हैव टू फाइट अगेंस्ट इट। बहुत बेचारे लड़ रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन नहीं आ रहा उनके पास, क्योंकि उनकी इनकम नहीं बढ़ती इतनी तेजी से। तो कई चीजें वो नहीं ला पाते घर में, लेट गो करनी पड़ती है नेसेसिटीज को। नाउ मेजर्स, क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो करप्शन है, जो बहुत बुरी चीज है। मतलब कि 2 रुपए का 4 रुपए लेना, या दैट इज कॉल्ड ब्लैक मार्केटिंग। अच्छा, करप्शन जैसे यहाँ पे वर्ड है ब्लैक मार्केटिंग। दो का स्केसिटी है करके कई लोग जैसे नेसेसिटीज के भाव बढ़ा देते हैं, और क्योंकि वो नेसेसिटी हम ज्यादा प्राइस में ले लेंगे, और जो नहीं ले सकते उनको बिना नेसेसिटीज के आगे बढ़ना होगा लाइफ में। दैट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ब्लैक मार्केटिंग एक खराब है। करप्शन है, मतलब कि तुम मेरा इतना काम करवा लो, मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा या दे दूंगी। तो लोग ब्राइब दे रहे हैं, कई लोग ब्राइब ले रहे हैं, दिस इज करप्शन। फिर बहुत सारी चीजें गोडाउन में डाल के रखना, और जब शादी का माहौल जैसे ग्रीनरी शॉप वाले, फिर शादी का माहौल टाइम पीरियड या सब हिंदू फेस्टिवल्स एंड ऑल, तब वो स्कैसिटी क्रिएट करेंगे मार्केट में कि ये चीज है ही नहीं। अब क्योंकि घर में शादी है या फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो लोगों को वो चीज चाहिए, जैसे कि शक्कर, तेल, मैदा, गेहूं एक्सेट्रा। अब वो ले लेंगे हाई प्राइस में। तो कीपिंग स्टॉक ऑफ थिंग्स इन द गोडाउन, फिर ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। पॉपुलेशन इंक्रीज, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि पॉपुलेशन इंक्रीज होती रहती है, चीजें उतनी तेजी से ग्रो नहीं होती फार्मिंग में या फैक्ट्रीज में। तो दीज आर द फैक्टर्स, दैट इज रीजंस अफेक्टिंग प्राइस राइज। प्राइस राइज इसी की वजह से हो रहा है, जैसे इन्फ्लेशन। बहुत डिटेल में 10th में होगा। What can we do to stop it? The only solution is to this can be a calculative and sensible thinking. So when do we find wastage of food? शादियों में, parties, we always see there is wastage of food, and many other places where you can just note it down. As a citizen, what can we do to stop it? तो जैसे अभी कोविड टाइम पीरियड में स्टार्टिंग में था कि भाई शादी में 10 लोग ही, फिर 50 किए, फिर 100 किए, फिर 200 किए। जब तक 10-12 थे, सिर्फ कोर्ट मैरिज, गर्ल एंड बॉय, एंड दो साइड के दो लोग, 4-4 या 5-5 लोग। यहाँ तक कि सिस्टम आज भी कई लोग बिना, गवर्नमेंट ने तो अब 200 की छूट दे दी है, 1000 की भी छूट हो जाएगी, 2000 की भी छूट हो जाएगी थोड़े टाइम के बाद शादियों में, when there will be no COVID and all। तब भी लोगों को समझना है कि नहीं, all these things should be carried out on a very minimum base, ताकि इस वेस्ट ऑफ फूड, वेस्ट ऑफ वाटर, वेस्ट ऑफ मनी, तो वेस्ट ऑफ फूड हम इस तरह से स्टॉप कर सकते हैं एटलीस्ट फ्रॉम आवर साइड। देन जस्ट एक जगह से मैं पास हो रही थी, एक टेम्पल है इसी एरिया में, तो बहुत सारे टेम्पल्स हैं, लेकिन एक टेम्पल के पास से मैं जब मॉर्निंग वॉक करके निकल रही थी, तो वहां पे देयर वाज अ गर्ल हु वाज सेलिंग मिल्क। वो अमूल मिल्क के कैरेट्स लेके बैठी हुई थी। वी वेंट एंड टुक 2-3 थैली जो हमें चाहिए थी हमने ले ली, और 2-3 पैकेट्स ऑफ मिल्क, एंड फिर एक बकेट में बहुत सारा मिल्क था। तो मैंने कहा ये क्या है, मिल्क बकेट में क्यों है खुला पड़ा हुआ? तो उसने कहा कि बहुत सारे लोग जैसे रोज यहाँ पे आते हैं, और फिर वो तो जॉब पे कई बार चले जाते हैं, तो दे डोंट, और दे माइट नॉट गेट टाइम लेटर ऑन, कोई और रीजन की वजह से। तो फिर वो हमें पैसे देके जाते हैं कि भाई एक थैली दूध मंदिर में चढ़ा देना। तो ऐसे करते करते ऐसे हमारे दिन में 10-15 बकेट हो जाती है। हम उनकी तरफ से एक थैली दूध बकेट में डाल देते हैं, फिर जैसे बकेट फिल हो जाती है, फुल अप हो जाती है ऊपर तक, तो हम मंदिर में महाराज को दे आते हैं, या हम दे देते हैं वहां मंदिर में कि भाई भगवान को ये दूध चढ़ा देना।
Sorry, I'm not against any religion. But when I saw this, एक सोच आ गई that that was waste of milk. I'm not against any person. किसी लोगों के अगेंस्ट में नहीं हूँ, किसी की सोच के अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैं किसी धर्म के अगेंस्ट भी नहीं हूँ. But this anybody could see with your open eyes that शायद एक अंधे को भी ये बात बताओ तो वह कहेगा it's waste, sheer waste. Same thing we could have given that milk to the needy people, right? ऐसे ही कोई रोज आके बोल जाए कि भाई बकेट में डालते जाओ एक एक के लिए हमारी ओर से और गरीब को पिला दो. तो this is what we can do. Now poverty, देखो इतनी पॉवर्टी हमारे कंट्री में, तो वहां जाके सपोर्ट करो. So poverty is one of the most serious problem of our country. Any situation where almost maximum people are deprived of basic necessities like food, clothing, shelter, health, employment, education, etc. is termed as poverty. One marker learn it perfectly. एक पॉवर्टी किसे कहोगे? एक ऐसे सिचुएशन जहां पे मैक्सिमम लोगों को नेसेसिटीज नहीं मिल रही, और 5 नेसेसिटीज को पहले हम काउंट करेंगे: फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन. ये जब इन लोगों को नहीं मिल रही तो उसको हम कहेंगे पॉवर्टी. The percentage of people in Gujarat living below the poverty line is 14.7%. On the basis of purchase value and level of income, criteria of poverty can be decided. Criteria मतलब definition of poverty कैसे decide करेंगे? On the purchase value and level of income. Income मेरी 100 है, मार्केट में नेसेसिटी, सिर्फ नेसेसिटी 5 खरीदने जाती हूँ तो 200 रुपए की है, सिर्फ नेसेसिटी एट द लोवेस्ट मार्केट रेट पे 200 की मिल रही है. मेरी इनकम 100 है. आई एम इन पॉवर्टी बिकॉज आई कैन बाय ओनली 1 or 2 नेसेसिटी, आई कांट बाय ऑल. तो सारी इंपॉर्टेंट है ये 5 नेसेसिटी, उतनी बाय करने की जितनी इनकम नहीं है हमारे पास. और हम ये नहीं कहते फूड, क्लोथिंग, हेल्थ, शेल्टर, एजुकेशन ऑल शुड बी ऑफ 5-star क्वालिटी. प्राइवेटाइजेशन में नहीं, लेट इट बी लो क्वालिटी, लेट इट बी एट द लोवेस्ट रेट, मार्केट रेट पे जब ये खरीदने जाते हैं फिर भी हमारे पास इतनी इनकम नहीं है, तो हम पॉवर्टी की डेफिनेशन में आते हैं. द परसेंटेज ऑफ पीपल इन गुजरात लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इज 14.7%. On the basis of purchase value and level of income, the criteria of poverty can be decided, as I told you. Due to the 5-year plan in India, education and medical facilities, that is health, are easily now available to us, accessible. मतलब ये 5-year plan जो इतने साल से चलते आ रहे हैं, और हमारी जो आज की सरकार है नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके अंडर जो नए नए हमारे प्लान्स आ रहे हैं, इट हैज इंक्रीज द एजुकेशन, इट हैज इंक्रीज द लेवल ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, और हर एक लोग एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज तक पहुंच सकते हैं. आज उन तक ये चीजें आ रही है. मोर इंडस्ट्रीज आर डेवलप्ड अ लॉट एंड पॉवर्टी हैज रिड्यूस्ड gradually. It has reduced, not graduate, it is gradually it has reduced due to more employment opportunity. पॉवर्टी क्यों कम हो रही है? अच्छी बात है, क्योंकि फिर से हमारी ये जो गवर्नमेंट है वो इतने सारे नए प्लान्स और स्कीम लेके आ रही है, नए प्रोजेक्ट्स लेके आ रही है, नई इंडस्ट्रीज लेके आई, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया लेके आई, जिसके अंडर न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, बेटर टेक्निक्स आई, एग्रीकल्चर में भी और इंडस्ट्रीज में भी, और लोगों को और ज्यादा काम मिल रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, पॉवर्टी कम हो रही है क्योंकि लोगों को काम मिल रहा है. बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब जिनको अच्छे से न्यूट्रिटिव डाइट ना मिले, डर्टी एरियाज में रहते हैं, बार बार बीमार पड़ रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल रही, उनको हम कहेंगे पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन. द पीपल हु डोंट गेट न्यूट्रिशियस फूड रिसाइड इन डर्टी एरियाज, दैट इज कॉल्ड फिल्दी, रिमूव ए नहीं लिखना है, फिल्दी एरिया, डर्टी एरिया, एंड आर नॉट गेटिंग, दैट इज डिप्राइव्ड ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, they are illiterate, they die at a very young age, they don't go to school, and child labor is existing everywhere, prevalent everywhere. They are said to be living below poverty line. So next we come to corruption, right? So now let's know first of all what is corruption. In the terms I told you in short, of course, just now, but somewhat in more words, if I would like to explain you, it is in the terms of a layman. Layman means like you and me, common people.
they get corruption means for them. Corruption means when we have to buy SOME, something more for such a thing which is a right to get freely, right? So किसी चीज को जो हमारी राइट है और हमें फ्रीली मिलनी चाहिए, बहुत फ्रीली मतलब इजीली, लेकिन हमें नहीं मिल रही, और उसके लिए जब हम कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, राइट? 2 रुपए की चीज के सामने अगर कोई कह रहा है कि हम आपका एक काम करके देंगे, आप 100 रुपए दे दो, एक्चुअली वो 2 रुपए में हो जाती थी. इट वॉज अ राइट एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री टू गेट दैट थिंग फॉर 2 rupees, बट वी आर नॉट गेटिंग इट. एंड in that procedure, there are people who ask for more money for that work to be done. Or for us, if they make it difficult to get that thing without a huge amount of payment, तो some corruption कहेंगे. In short, the immoral and illegal behavior to no, you can say just it's a wrong any this is not any particular word, it's very wrongly written over here. So एक immoral and illegal behavior towards a person is corruption. It is two words, WARDS, साथ में लिखना है, two words. Deceit मतलब cheating, giving gifts to get the work done. किसी को गिफ्ट देना कि भाई हमारा काम जल्दी कर दो. Taking bribe, अच्छा मैं तुम्हारा काम करके दे दूंगी, तुम मुझे इतना लाके दे दो, etc. Are some forms of corruption. Both the parties are corrupt. The one who gives and the one who accepts. It has become widespread in common life. Some people add fuel to the fire by undertaking corruption through immoral behavior, irresponsible act, etc. Corruption is the dark spot. एक धब्बा है वो हमारी सोसाइटी पे, और हमारी कंट्री की डेवलपमेंट इसलिए स्लो हो जाती है. So corruption is the dark spot in the development of our country. Let's see the effects of corruption. Now, after that, you will see, after effects of corruption, we have this unemployment. We'll discuss on this. And then you have modernization unemployment. Then you have measures कि कैसे तुम अनएम्प्लॉयमेंट को कम करोगे और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओगे. तो थोड़ा बहुत 10th चैप्टर का है, वो भी हम डिस्कस करेंगे. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ऑफ कोर्स यू हैव टेररिज्म ओवर योर एंड इट्स मेजर्स. तो काफी सारी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. तो टिल देन विल रीड ओवर योर. एंड करप्शन की इम्पैक्ट क्या है कि ह्यूमन राइट्स जो हमारी है एक्चुअल में वी आर नॉट गेटिंग इट, दे आर वायलेटेड. करप्शन लीड्स टू इल इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी. लाइक सबसे पहले तो गलत इफेक्ट होती है सोसाइटी पे. हमारी ह्यूमन राइट्स हमें नहीं मिल रही ठीक से. ये नहीं कहती मिलती ही नहीं, पर जो है वो वायलेट हो रही है कहीं. डेवलपमेंट ऑफ द नेशन इज इन ट्रबल. हिंडर्ड मतलब रुकावट आ जाती है बीच में. मॉरल वैल्यूज डिटीरियोरेट. ऑनेस्टी, भरोसा एक दूसरे पे, वो सब खत्म होता जा रहा है. अच्छे वैल्यूज हमारे खत्म होते जा रहे हैं. इन्फ्लेशन, प्राइस राइज, ट्रस्ट टुवर्ड्स लॉ एंड ऑर्डर डिक्रीजेस. गवर्नमेंट और हमारे लॉ एंड ऑर्डर की तरफ हमारा जो विश्वास है वो कम होता जा रहा है. ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फेथ डिक्रीजेस. जैसे मैंने कहा, लोगों पे भरोसा कम होता जा रहा है. हमारा डेवलपमेंट इसलिए कम हो रहा है, तो कंट्री का डेवलपमेंट कम हो रहा है. तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया इसके बारे में? गवर्नमेंट हैज फ्रेम्ड सर्टेन लॉज सिंस 1988 to reduce and prevent corruption. Anti-Corruption Bureau has been formed in the year 1964. It checks and controls corruption. It gives guidelines to people regarding their problem. So I shall stop over here for today. In the next video, you will see the remaining part along with some discussion of what is there in 10th standard also in detail. तो ज्यादा अच्छे से समझ में भी आ जाएगा. And next week से grammar भी हम start कर रहे हैं, tenses. So please go through these chapters. And thank you so much. In the next video, I share the remaining section.